वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें मिडिल क्लास को राहत दी गई है या नहीं, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है। लेकिन बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि अब 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिसे सरकार बड़ी बात बता रही है। रिपोर्ट देखिए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की बातें की गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बुजुर्ग 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेदर से बने सामान सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा, मोबाइल फोन और मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी, इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी, कपड़े का सामान सस्ता होगा, LED टीवी भी सस्ता होगा और कैंसर की 36 दवाइयाँ पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएंगी। Stand Up India scheme, online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors to promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors. Our government will undertake specific policy and facilitation measures to enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector. A focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाइयाँ सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% तक कर दी जाएगी। बजट में उन्होंने कहा कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। I shall now take up sector-specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। करदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कर सुधारों को लागू करने में सरकार के 1 दशक लंबे प्रयासों पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं को SC और ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी।
scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. पहाड़ी राज्यों के लिए उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट बनेंगे। नई उड़ान योजना से 200 नए शहर जोड़े जाएंगे। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। बजट में किसको क्या मिला, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है। विपक्ष कह रहा है कि पहले भी मोदी सरकार देश की जनता को धोखा दे रही थी और आज भी धोखा दे रही है। सरकार बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन होता कुछ नहीं। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो पिछले बजटों की तरह फिर से जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, उसके लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते किए गए हैं, लेदर का सामान सस्ता किया गया है, पहाड़ी राज्यों में हेलीपैड बनाने की बात की गई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पहाड़ी राज्यों से पलायन कैसे रुकेगा, कैसे महंगाई से जनता को निजात मिलेगी, कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस पे इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को इस बजट ने निराश किया है। देखिए, केंद्र सरकार का ये बजट पूरे देश के लिए निराशाजनक रहा है। जहाँ तक पर्वतीय राज्यों की बात करें, भारत सरकार बजट में कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाएंगे। आप एयरपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए जो बजट होना चाहिए, जिनके लिए जो है बाहर आनी चाहिए, उनकी आप कहीं बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको जो है राहत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण सस्ते करेंगे और कई तमाम प्रकार की आप जो है प्रलोभन अपने बजट के अंदर लोगों को देने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम मोबाइल के रिचार्ज सस्ते करेंगे, जिससे जो है गरीब तबके पे भार न पड़े। आप लगातार जो है मोबाइल के रिचार्जों की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों की पकड़ से जो है मोबाइल फ़ोन दूर होते जा रहे हैं। बड़ा भार लोगों पे जो है मोबाइल फ़ोनों को रिचार्ज करने के लिए पड़ रहा है। भारत सरकार ने कहीं इस प्रकार की बात नहीं की। ये झूठे लुभावने बजट को दिखाकर एक प्रकार से गरीबों पे जो है, गरीबों के ऊपर जो है एक प्रकार से भद्दा मजाक जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, केंद्र सरकार का ये बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इसके पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट होगी। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा और वहीं 8 से 12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। और मनोज रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। आपको आवाज मिल पा रही सर मेरी? जी मनोज जी, जिस तरह से आज बजट भी पेश हुआ है और वित्त मंत्री ने जो अनाउंसमेंट की है, किस रूप में आप इनको देखते भी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे ज्यादा जो चैनल आज चला रहे हैं कि 12 लाख तक अब इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा जी। पहले तो स्लैब को देखें तो 12 लाख तक 10% तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। दूसरी बात यह है कि आज आप अपने आसपास देखिए कि 12 लाख का मतलब 1 लाख रुपया सालाना तनख्वाह वाले कितने लोग हैं जी। देखिए, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात। आप आज अगर जो बेरोजगारी और रोजगार का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसमें 95% लोगों की तनख्वाह 10,000 से कम हो गई है। जो सर्वे होते हैं तो सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लोगों की इनकम ही नहीं है तो आप इनकम टैक्स की सीमा कुछ भी बढ़ाओ तो
बड़े लोगों को, चुनिंदा लोगों को जो आराम देना चाहते हैं, उसकी कवायद है। आप अपना स्वयं पर देखिए, आप अपने आसपास के जो पत्रकार बिरादरी है, जो काम करने वाले हैं, उनके तनख्वाहों को तो देखिए, तनख्वाहों का क्या हो रहा है इस देश में। जी। तो मेरा ये कहना है कि आप टैक्स के रूप में जीएसटी का विस्तार आपने इतना बड़ा कर दिया है कि आम आदमी, जो गरीब आदमी, जिसकी कोई आमदनी नहीं है, जो कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, जी। वो टैक्स के अधीन आ गया है जीएसटी के कारण। जी। तो ये जो इनकम टैक्स वाली बात है, ये बात तो धूल झोंकने वाली बात है। दूसरा, जो मैं अभी निर्मला सीतारमण जी के कुछ अनाउंसमेंट सुन रहा था, जी। इस बार बिहार से बहुत प्रेम हो गया उनको फिर से, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य जी। देश में येन केन प्रकारेण अपनी शासन सत्ता बनाने का है। तो मैं देख रहा था मखाना बोर्ड बनेगा। अब ये मखाना बोर्ड आज तक बनाने में उनके हाथ और पैर किसने रोके थे? और ये भी बताना चाहिए निर्मला सीतारमण को कि ये मखाना बोर्ड के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रस्ताव किया है। जी। देखिए, जब टैक्सेशन हो गया है जीएसटी के कारण, सारा टैक्स केंद्र सरकार के पास जा रहा है। जी। उस समय केंद्र सरकार से राज्य के लिए बड़ी योजनाओं की अगर कोई घोषणा होती है तो वो एक खुशी की बात होती है। अब मिथिलांचल में एक्सटेंडेड सिटी बनेंगी। अब वो एक्सटेंडेड सिटी के लिए ये कहाँ चले गया आपका स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट? आज क्यों नहीं बता रहे? जो 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे, इसमें आपका देहरादून है, क्या हाल कर दिया स्मार्ट सिटी में देहरादून का। ये अपने ठेकेदारों के, जिनमें ठेकेदारों में से अगर आप पूरे देश में ठेकेदारों को देखेंगे, स्मार्ट सिटी से लेकर केदारनाथ पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण से लेकर के, और जहाँ ये इलाहाबाद जो महाकुंभ हो रहा है, वहां तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सारे ठेकेदार गुजरात के हैं। जी। तो मतलब गुजरात में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि गुजरात के लोग सारे देश में जाके ठेकेदार कर रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, जो बड़ी भी जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, वो तो गुजरातियों के लिए हैं। गुजरातियों को पालित पोषित करने के लिए ये बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि देश की चिंताएं अलग हैं। जी। निर्मला सीतारमण जी को तो बताना चाहिए कि देश पर कर्जा कितना है। जी। जी, बजट बिल्कुल। कितना है, कर्जा कितना है। हाँ ये बड़ी चिंता है। और देश में बेरोजगारी हटाने के लिए देखिए, कभी की सरकारें मनरेगा जैसी योजना लाती थी ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को हटाने के लिए। ये सत्य बताया ना कि चौथा के बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए इन्होंने कौन सी योजना लाए? जी बिल्कुल। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मथुरा जी, जिस तरह से बड़ी घोषणाएं हुई हैं और 12 लाख रुपए तक जो सालाना इनकम है उसको बोला गया है कि टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन मनोज रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं, और कई तरह की बात में उनका दम भी है, जो वो कह रहे हैं कि आखिर क्योंकि इतने कम लोग ही हैं, 12 लाख से ज़्यादा अधिक तो ऐसा कोई बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है और गरीब के कल्याणकारी बजट है। और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, विशेषकर मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है। और महंगाई को कम करने वाला बजट है, बेरोजगारी को कम करने वाला बजट है। और मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने विकास के अनुरूप बजट बनाया है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है। एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात कही गई है, रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात कही गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। और इस बजट से निश्चित रूप से देश में गरीबी भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, और इस वजह से निश्चित रूप से महंगाई भी कम होगी, महंगाई में भी रोक लगेगा। और विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहना ही कहना है, ठीक है, वो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कल्याणकारी सरकार की का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि गरीब के हित में सोचना है। और अंत्योदय की बात इस बजट में कही गई है, जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर विकास की किरण पहुंचाने का काम इस बजट में संदेश दिया गया है। और गरीबों के लिए आपने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए विशेष राहतें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तमाम सामान सस्ता करने की बात हो रही है। और किसानों के हित में
बात इस बजट में की गई है और जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो भी उसकी सीमा भी बढ़ाई गई है, जो 12 लाख तक का टैक्स फ्री किया गया है। आज देखिए अब तो 7वां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग आ रहा है। कर्मचारियों को इसका विशेष फायदा मैं समझता हूँ, इस जो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया। जी बिल्कुल मथुरा जी, समय कम है। मथुरा जी, मनोज जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपनी बात रखी। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत राणा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की भी अपील की है। 41 मजदूरों पर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी, मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने रिठाला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई कुलवंत राणा जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग इनसे भली भांति परिचित हैं, भली भांति इनके बारे में जानते हैं। पिछले लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की परेशानियों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। यहाँ से 3 बार विधायक रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया है, कई विकास के काम किए हैं। इसलिए आगामी 5 फरवरी को मैं आप सबसे इनके लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इनको अपना आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक समय था 2014 से पहले का भारत, अगर हम थोड़े दिनों आज से 10 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे उस समय का आपको याद होगा कि हमारी छवि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बनती जा रही थी कि दब्बू भारत, विश्व के बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस भारत से, भारत के उस दब्बूपन से बाहर निकालने का काम, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों का रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत
6500 फ्लैट झुग्गीवासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया, फ्री पानी देने का वायदा किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहाँ के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहाँ के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग दिल्ली के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर में हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। कानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 450 समर्थकों के खिलाफ बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ में जुटी हुई है और अब लगातार कार्रवाई भी जारी है। हरिद्वार के खानपुर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार प्रकरण में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चैंपियन के जेल जाने के बाद अब उमेश कुमार पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विधायक उमेश कुमार सहित 450 समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिन एक सभा का आह्वान किया गया था, जिन्होंने बाद में इसको निरस्त कर दिया था, पर उसके बावजूद पुलिस के द्वारा इसमें जो आवश्यक एहतियात बरती गई थी, बॉर्डर पर हम लोगों के द्वारा इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और किसी भी प्रकार के किसी भी सम्मेलन को कोई अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में सर्व समाज की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से आए करीब 80 से 90 लोग कॉलेज ग्राउंड में एकत्र होने लगे और जब पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें वहां से हटने को कहा, भीड़ उग्र हो गई और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगी। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आज गोवर्धनपुर के पास में, हमारे खानपुर बॉर्डर के पास में एक घटना हुई जिसमें इनके द्वारा पथराव पुलिस पर किया गया था। जब इन्हें आने से रोका जा रहा था, पुलिस ने तत्काल इनको जो आवश्यक बल प्रयोग के बाद इनको कुछ गाड़ियां सीज करी हैं, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद से पुलिस ने लक्सर और खानपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। इस मामले की गहराई से जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जो इस तरीके से कानून का उल्लंघन करता है या इस तरीके से अपने आप को सोच रहा है कि वो आके यहाँ पर कुछ भी कर लेगा, उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।
विधायक उमेश कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले दोनों नेताओं की लड़ाई सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और उसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ठिकानों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसमें चैंपियन तो जेल चले गए लेकिन उमेश को बेल मिल गई, जिससे चैंपियन के समर्थकों में नाराजगी है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिला प्रशासन सख्त है। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट।